Good morning, students. So, welcome to our new lecture. Now, from this particular lecture, we are going to study chapter number 4, that is disaster management. Okay, so we will be studying how we can manage a disaster. That is how we can prevent ourselves from a disaster, or what preventive measures must be taken, or what remedial measures must be taken once the disaster has occurred. ओके, सो डिजास्टर होने से पहले और डिजास्टर होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, सो नाउ can you tell that what events do you see in these pictures? Now you can see that six pictures over here. Okay, now each and every picture is showing one of the type of disaster. So in the first picture, okay, this picture resembles earthquake. Okay, ये पिक्चर में हमें क्या समझ में आ रहा है कि earthquake हुआ है. ओके, बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स हो रहा है. आपको देखने मिल रहा है कि जो लैंड है, ओके, वहां पे आपको क्रैक्स देखने मिल रहे हैं और एक इंसान क्या हो रहा है, वहां से भाग रहा है. ओके, so this particular picture is showing an earthquake. Then this, the second picture, it is showing a drought or famine. Drought या famine मतलब क्या, सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं लगती उस इलाके में, अनाज नहीं उगता है पूरी तरीके से, टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है. ओके, सो उसे हम क्या बोलेंगे, ड्राउट बोलेंगे या फिर famine बोलेंगे. ओके, इन द थर्ड पिक्चर यू विल सी दैट a flood has taken place. So this particular picture is showing the flood. Okay, flood मतलब क्या, बाढ़ जो आ जाती है वो इस पिक्चर में आपको देखने मिल रहा है. ओके, जो कार है देखो वो पूरी तरीके से पानी में डूब गई है. ओके, देयर इज अ मैन हु इज sitting on a roof of the house. Okay, so as to keep himself safe from the flowing water. Okay, in the fourth picture you will see that a fire has caught to a house. Okay, एक घर को आग लग गई है. ओके, सो दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज शोइंग a fire. Okay, or we can say jungle has been caught fire. Okay, forest fire भी ये resemble कर सकते हैं पिक्चर. In the fifth picture, okay, it is representing cyclone. Okay, cyclone, तो अभी इंडिया में भी, हमारे देश में भी बहुत सारे साइक्लोन्स हुए हैं रिसेंटली. ओके, अम्फान हमने सुना है, यास है, फानी है. ओके, देन निसर्ग तूफान जो अब महाराष्ट्र को स्ट्राइक किया था, तो ये सब क्या है, वो साइक्लोन्स है. ओके, तो फिफ्थ पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइक्लोन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड द सिक्स्थ पिक्चर इज रिप्रेजेंटिंग वोल्केनिक इरप्शन. सिक्स्थ पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्केनिक इरप्शन. ओके, सो ज्वालामुखी जो फटती है, तो वो आपको यहाँ पे इस पिक्चर में देखने मिल रहा है. सो दिस सिक्स इलस्ट्रेशंस आर शोइंग सम काइंड ऑफ डिजास्टर. व्हाट दे आर शोइंग, दे आर शोइंग अ disaster. What would you have done in these situations? Now suppose if you imagine that you are in such places where this disaster is taking place, what can be done? Okay, what we can do? Okay, the first aim will be that we must keep ourselves protected from the disaster. Okay, we want to save our life first. After saving our life, after assuring that we have saved our life, we can look into the another prospects or aspects of the disaster. But first thing is that during a disaster, we have to save our own life. Okay, and once we are safe, we can try to save other people, we can try to retain our own property. Okay, but the basic aim is to save ourselves. Now, have you experienced such a situation yourself? Yes, we have seen a lot of disasters. Okay, our country is experiencing a lot of disaster. So various types of disaster took place. Now, we all have experienced a Nisarga cyclone. Okay, so that struck Maharashtra state. Okay, so what happened during this particular cyclone period? The power shortage was there. Okay, लाइट चली गई थी, ये हम सबको मालूम है. लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरीके से बंद हो गया था, नेटवर्क के प्रॉब्लम्स थे. ओके, कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो गया था, और वो तूफान की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ. ओके, बहुत सारे लोगों का घर का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, हमने देखा है ये.
तो जब भी कोई डिजास्टर होता है तो लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का क्या होता है, नुकसान होता है। ओके, मतलब लोगों की जान जाती है, जानवरों की जान जाती है, और उनकी जो संपत्ति होती है, जो प्रॉपर्टी जो होती है, उसके ऊपर भी क्या होता है, खतरा मंडराता है और उसका भी नुकसान होता है। वाई डू वाई डू दिस इवेंट्स ऑकर? अब ये जो अर्थक्वेक है या फिर फमाइन है, ओके, फ्लड हो गया, फॉरेस्ट फायर, साइक्लोन या फिर वोल्केनिक इरप्शन, ये क्यों होते हैं? तो इनके पीछे नेचुरल रीजंस होता है। ओके, मोस्टली दिस डिजास्टर्स ऑकर नेचुरली। क्यों हो रहा है ये? नेचुरली हो रहा है। ओके, लेकिन हम बहुत सारे डिजास्टर्स को या फिर जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग रिजेंबल कर सकते हैं, या फिर उसके लिए हम लोग रीजंस दे सकते हैं। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग एक रीजन है। ओके, सो ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो क्लाइमेट चेंजेस हमें देखने मिल रहे हैं, वो क्लाइमेट इस तरीके से चेंज हो रहा है कि बहुत सारे जो डिजास्टर है वो हो सकते हैं हमारे अर्थ के ऊपर। ओके, सो बहुत सारे ये इवेंट्स क्यों होते हैं और इन इवेंट्स से हम लोग कैसे बच सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये सब हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, so here some examples are given, okay, of disaster that took place. Now, in July 2014, the whole village of Malin in Ambegaon Taluka of Pune district was destroyed in a matter of minutes due to a landslide. Many got buried under the heaps of soil and stone and lost their lives. Okay, so there is a village. Name of the village is Malin. Okay, which is in Ambegaon Taluka in Pune district. Okay, so this particular incident is from our own state, Maharashtra. Now, द डिजास्टर दैट टुक प्लेस वाज लैंडस्लाइड। सो लैंडस्लाइड में क्या होता है, बारिश की वजह से या फिर जो लेयर है सॉइल का, अगर वो वीक हो गया है तो उस वजह से क्या होती है, जो पहाड़ के ऊपर का जो मट्टी है, जो सॉइल है, वो क्या होता है, स्लाइड हो जाता है नीचे फुट की तरफ। ओके, जो फुट हिल्स है उसकी तरफ क्या होता है, वो स्लाइड हो जाता है। अब फुट हिल्स पे एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है मलीन। ओके, और वो गांव के ऊपर ये कहर बरस गया। कैसे बरस गया कि ये लैंडस्लाइड जो है, जो भी मट्टी है, जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ऑब्वियसली लैंडस्लाइड होगा तो वहाँ पे जो स्टोन्स होंगे, बड़े बड़े बोल्डर्स जो होंगे, वो भी क्या होंगे, नीचे ही गिरने वाले हैं। ओके, सरफेस पे, माउंटेन के सरफेस पे नीचे ही गिरने वाले हैं, और जो भी घर थे आसपास वहाँ पे, वो सब क्या हो गए, तबाह हो गए। बहुत सारे लोगों की उसमें जान गई। ओके, और ये सब होने को कितना टाइम गया, कुछ मिनट्स। ओके, लैंडस्लाइड हुआ कितने मिनट में, 4-5 मिनट में लैंडस्लाइड हुआ होगा, और उससे नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। ओके, और ये कब हुआ था, जुलाई 2014 में। सो आप लोग यहाँ पे ये पिक्चर में देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड हुआ है, और पूरी तरीके से देखो डिस्ट्रक्शन आपको देखने मिल रहा है। सो ये डिस्ट्रक्शन जो है वो लैंडस्लाइड की वजह से हुआ था, और इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई। Then one more example is given in November 2015. Many people died due to the flooding caused by heavy rains in Tamil Nadu. So बहुत ज़्यादा बारिश लगने की वजह से बाढ़ आ गया, और बाढ़ कहाँ पे आया था, तमिलनाडु में आया था इन नवंबर 2015, और इस वजह से बहुत सारे लोगों की क्या हुई थी, जान गई थी। ओके, then one more example, in 1993 many people died due to the earthquake at Killari in Latur district. सो लातूर डिस्ट्रिक्ट में किल्लारी नाम के एक जगह पर, एक गांव में क्या हुआ, अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों की जान गई। और आप लोग देख सकते हैं कि अर्थक्वेक की वजह से जो हाउसेस है वो क्या हो गए, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ओके, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस हैव टेकन प्लेस ड्यू टू एन अर्थक्वेक। Now, even today, people of Mumbai shudder at the memory of July 2005 when many people had lost their lives in the deluge caused by the heavy rains. Now, every year, this is the same. Okay, this particular news is same that every year our metropolitan cities like Mumbai, okay, these cities are drowned due to heavy rains. पूरी तरीके से पानी भर जाता है इन शहरों में। ओके, रास्ते बंद हो जाते हैं, पानी भर जाता है, पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्टॉप होता है। कम्युनिकेशन के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने मिलता है, बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है, और ये बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। ओके, सो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है डिजास्टर के। अब कुछ डिजास्टर में लोगों की जान जाती है ज्यादा, कुछ डिजास्टर में प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, कुछ डिजास्टर में दोनों होगा, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होगा, लोगों की भी जान जाएगी। और ये डिजास्टर होने को समय जो लगता है वो बहुत ही कम लगता है।
ओके, अर्थक्वेक आया, 2 मिनट 1 मिनट रहा और चला गया, लेकिन उससे जो नुकसान होता है वो नुकसान का भरपाई करते करते हमारा पूरा उम्र भी निकल सकता है। ओके, सपोज जिसका जिसका भी ये घर होगा, जिसका ये डिस्ट्रॉय हो गया है घर, ऑब्वियसली उसको ये घर फिर से बनाने को सालों लग सकते हैं। ओके, सो डिजास्टर होने को टाइम कम लगता है और डिजास्टर का जो नुकसान है वो हमें बहुत लंबे समय तक झेलना पड़ता है। Now, if we want to define a disaster, so what is disaster? Okay, the definition of the disaster is given over here. A sudden event that causes large scale damage to life, property, and social aspects of a nation or society is called a disaster. ऐसा इवेंट जिसकी वजह से बहुत ही बड़ी तादाद में, लार्ज स्केल अमाउंट में लाइफ का नुकसान होता है, मतलब लोगों की जान जाती है, जानवरों की जान जाती है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, और किसी भी देश की जो सामाजिक व्यवस्था होती है, जो सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं नेशन के या फिर किसी सोसाइटी के, अगर उसके ऊपर उसका इफेक्ट देखने मिलेगा तो उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? डिजास्टर बोलेंगे। ओके, द स्पेलिंग ऑफ द डिजास्टर हियर इट इज रॉन्ग। ओके, DISASTR, इट इज द करेक्ट स्पेलिंग। सो व्हाट इज डिजास्टर? It is an event where a large scale damage of life take place. Okay, there is a very huge damage of property, and the social aspects of nation or the economy of the nation is affected. Okay, so this is called as disaster. Okay, सो डिजास्टर क्या है हमें अच्छे से मालूम है, क्योंकि हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, हमारे देश में डिजास्टर्स होते रहते हैं और हम लोग रोज न्यूज देखते हैं, कहीं ना कुछ डिजास्टर होता है। ओके, now there are several types of disaster. There are n number of disasters. Okay, we will be studying about those disaster in this particular chapter. Okay, now we will see the reason behind how floods occur due to heavy rains. Okay, we will be studying about an earthquake, lightning, or a volcanic eruption. Okay, how those disaster take place. Then what is forest fire? We will study that also. We will try to understand the risks due to high density of the population in a limited area. Suppose a disaster has taken place, taken at a place where द पॉपुलेशन इज वेरी हाई। ऐसी जगह पे डिजास्टर हुआ है जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उसका क्या इफेक्ट देखने मिलेगा वो भी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। रैम्पेंट एंड इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस की वजह से क्या डिजास्टर होते हैं? इरेगुलर कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज एक बिल्डिंग बनाई गई है और वो बिल्डिंग जो है वो ठीक से नहीं कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ओके, 6 फ्लोर की एक बिल्डिंग है और उसे ठीक से हमने बनाया ही नहीं है, जो मटेरियल उसमें यूज किया है वो लो क्वालिटी मटेरियल है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा भी अगर वेरी लो इंटेंसिटी का भी अगर अर्थक्वेक होता है, या फिर अगर उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की फ्रिक्वेंसी किसी नेचुरल फिनोमिनॉन की वजह से वीक अगर नजर आती है हमें, तो क्या होगा? वो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। बारिश में भी गिर सकती है, या फिर थोड़ा सा भी कुछ अगर चेंजेस आया, एनवायरमेंटल चेंज हुआ, तो वो बिल्डिंग गिर सकती है। अब यहाँ पर गलती किसकी है? बिल्डिंग बनाने वाले की गलती है। लेकिन इससे जो नुकसान होगा वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में नुकसान देखने मिलेगा हमें। प्रॉपर्टी का नुकसान है, लाइफ का नुकसान है। तो इसे हम क्या करेंगे? डिजास्टर के अंदर इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, डिजास्टर की वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी होता है। एनवायरमेंटल जो है, हम एनवायरमेंट जो है हमारा, तो वो क्या होता है? कंप्लीटली इम्बैलेंस हो जाएगा। जो बैलेंस बना हुआ रहता है वो बैलेंस बिगड़ जाता है एनवायरमेंट का। ओके, फिर कुछ डिजास्टर ऐसे हैं जो हम करते हैं। ओके, कुछ ऐसे इंसान हैं, असामाजिक तत्व है यहाँ पर, जो जिनकी वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का, और एक अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है नेशन में, हमारे देश में। सो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल टेररिज्म। ओके, देन रियॉट्स। टेररिज्म मतलब आतंकवाद, रियॉट्स मतलब दंगे। क्राइम्स जो होते हैं जिनमें बॉम्ब एक्सप्लोड किया जाता है, असॉल्ट होता है, फायर एंड एक्सीडेंट्स, ये सब क्या है? ये सब हमारे गलतियों की वजह से होती है, हमारी वजह से होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ा हुआ होता है, और उनके वजह से ये सब डिजास्टर होते हैं। ये डिजास्टर क्या हो गए? मैनमेड डिजास्टर हो गए। ओके, जिनमें हमारी गलती है। So in the next lecture, we will study about man-made disaster and natural disaster. Okay, and we will see what are the effects of those disaster in the next lecture. Okay,
तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।